میرے دوستوں، عزیزوں، جیزس لنک کے سننے والوں، الفریڈ گل آلبنی نیو یارک سے آج کی سچی اور اچھی باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج کا شو میرا ہے 380 اور شو کا ٹاپک ہے تنقید۔ شو کا ٹاپک ہے تنقید اور سب سے پہلے تلاوت کلام پاک۔ آج کا خوبصورت حوالہ مقدس متی کی انجیل، اس کا 5 باب، اس کی 11 سے 14 آیات تک پڑھوں گا۔ اس کی 11 آیات سے 14 آیات تک پڑھوں گا، اور یوں لکھا ہے کہ جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے، جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح سے بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا، خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی تم سے پہلے اسی طرح ہی کیا تھا، کیونکہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی اس تمہارے اجر میں بڑا ہے، کیونکہ لوگوں نے نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ تم زمین کے نمک ہو، اور اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینک دیا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند اپنی بڑی برکت بخشے، آمین۔ تو آج کا خوبصورت حوالہ جو میرے شو تنقید، جس کا ٹاپک ہے تنقید، اور پاک کلام میں بھی لکھا ہے کہ لوگ میرے نام سے تم کو ستائیں گے، مطلب کہ لوگ میرے نام سے تنقید کریں گے۔ اور تنقید کا یہ حال تھا کہ تم سے جو پہلے نبی تھے ان لوگوں کو بھی انہوں نے ستایا تھا، اور اسی طرح آج بھی جو تنقید ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ اور اسی تنقید کی وجہ سے ہم بہت سارے اگر ہم ملکی حالات کی طرف جائیں تو ہم نے بہت ساری بربادیاں کر لی ہیں، اور وہ بربادیاں اسی طرح جاری اور ساری ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ تنقید کی اتنی شدت ہو چکی ہے جو 70-73 سالوں سے جاری ہے، اور آج پھر وہ تنقید زوروں پر ہے، کیونکہ اپوزیشن نے ایک بار پھر اسی طرح جب ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی تھی، تو اسی طرح آج وہی ماحول تنقید کا یہاں تک پہنچ چکا ہے، اور وہ سارا سامان جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی اچھی حکومت ہے وہ ہم لوگوں کو پسند نہیں، اور ہم لوگ ہر ایک کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تنقید کرنے والوں کے ساتھ بھی ہم اتنی شاباش دیتے ہیں، اور جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو بھی اتنی شاباش دیتے ہیں، کیونکہ ہم ہر طرف ہی گھوم جاتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل بڑا لفظ جو چل رہا ہے یو ٹرن، ہم جو حکومت پہ تو تنقید کرتے ہیں، لیا عمران خان نے یہ ٹرن لے لیا، ٹرمپ نے آج یہ یو ٹرن لیا، لیکن ہم نہیں اپنے آپ کو دیکھتے کہ ہم یو ٹرن روز کتنے یو ٹرن لیتے ہیں۔ تو اس لیے تنقید اتنی اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھی تنقید اچھی چیز ہے کہ اچھائی کے لیے جس میں کوئی ہمارا فائدہ ہو، ویسی تنقید ہونی چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، جیسے میں نے حوالہ پڑھا ہے کہ لوگ تم کو ستائیں گے
जैसे मत्ती की इंजील उसका 5 बाब 11 से 14 तक कि मेरे इस बात से लोग तुम्हें लान तान करेंगे। ये भी तनकीद है, बहुत बड़ी तनकीद है। ये भी मैं अगर कहूं तो उस वक्त भी खुदाम यीशु मसीह को जो लोग जो उनके पीछे चलते थे, या आज हम खुदाम यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं या उनको मान, तो हमारे ऊपर भी तनकीद पे तनकीद होती है किसी भी हवाले से, जो तनकीद रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक नहीं है। और सबसे पहले एक पोस्ट पढ़ूंगा, लफ्ज जिंदा रहते हैं, 2 छिटांग की जबान काफी होती है तनकीद करने के लिए, छोटी सी जबान बहुत होती है, क्योंकि इस जुबान में इतनी ताकत है कि ये बड़े बड़ों की हड्डियां तड़वा के रख देती है। और ये क्या चीज है? ये तनकीद है। मगर बर्दाश्त करने के लिए हाथी जितना दिल और शेर जितना हौसला चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, हमने हर चीज को बर्दाश्त करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और शेर जैसा हौसला चाहिए। तो इसलिए हमने तनकीद से परहेज करना चाहिए। और तनकीद अगर अच्छी तनकीद है तो हमें उसका अच्छा जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो तामीरी कामों के लिए हो वो तनकीद अच्छी है। उसके बाद सबा, ये भी लफ्ज जिंदा रहते हैं, ज्यादती इतनी ही करो। ये ठीक बात है। आज लोग जो सियासी लोग अपोजिशन वाले जो हुकूमत को कहते हैं कि ज्यादती इतनी ही करो कि जितनी बर्दाश्त कर सकोगे। कहां तक ठीक है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ज्यादती तो हम करते ही रहते हैं, आम इंसान भी करता है। और जो अरबपति हैं जो कि यहाँ तक पहुंच चुके कि आज वो खुदा पर भी तनकीद कर देते हैं। तो ज्यादती इतनी ही करो जितनी खुद बर्दाश्त, जितनी खुद पर आए तो झेल सको, और जितना ही समेटो, और इतना ही समेटो जितना खुदा का खौफ अजाब बर्दाश्त करने के लिए ताकत रखते हो, जितना अजाब बर्दाश्त करने के लिए ताकत रखते हो। क्योंकि तनकीद करने वाले का मामला अल्लाह का मामला बन जाता है। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी मामले हैं जो इस दुनिया से नहीं बर्दाश्त होते या नहीं संवार सकते या नहीं सुधर सकते, जो तनकीद करके यहाँ तक पहुंच जाते हैं, तो फिर ये सारे मामले खुदा के पास चले जाते हैं। क्योंकि जो हमारा पैदा करने, जो हमें बनाने वाला है, फिर ये मामले उसके पास दुनियावी तौर पर भी, जब हम किसी गांव या शहर या मोहल्ले में होते, तो जब मामले बिगड़ जाते, तो कोई भी हमारा जो बड़ा है या चौधरी है, जो भी है, या फादर है या पादरी, तो हम उसके पास चले जाते हैं, जी ये मामला ठीक नहीं हो रहा, हमारी मदद करें। तो फिर जो उससे खुदा की तरफ से जो कोई फैसला आता है, तो फिर वो फैसला कर देता है। लेकिन हमारी तनकीद ये है कि हम किसी फैसले को मानते ही और ना मानेंगे। बात वो ही है कि ना मानू वाली बात जो है मौजूद रहती है। उसके बाद सुनील गौरी की 2 पोस्टें हैं। रास्ते के पत्थरों ने हिम्मत दी मुझे, रास्ते के पत्थरों ने हिम्मत दी मुझे, लोगों के तानों ने जुर्रत दी मुझे, जो मुखालफत की भट्टी में तन्हा ना था मैं, जो मुखालफत की भट्टी में तपता था मैं, सबर और इस्तकामत से राहों दां हो जानबे मंजिल रवा, सबर और इस्तकामत से रवा हूं जानबे मंजिल के रास्ते होते हैं मुकद्दम, अहम मंजिल कहाँ होती है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है, शख्स बन के नहीं, शख्सियत बनकर जिए, शख्स बन के नहीं, शख्सियत बन के रहो। क्योंकि शख्स तो खाक हो जाते हैं, मगर शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। कि जो आपका किरदार है, जो आपने जिंदगी में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जितनी जिंदगी भी खुदा ने हमने
इस जिंदों की जमीन पर दी है। अगर हम शख्स बन के जीते हैं तो ठीक है, शख्स आदमी जो भी है उसने शख्स तो चला ही जाता है, आदमी तो मर ही जाता है, क्योंकि खाक है, फिर हमें खाक में ही जाना। लेकिन जिस शख्सियत से, अगर हम अच्छी शख्सियत से जी रहे हैं, अगर हम बुराई की शख्सियत से जी रहे हैं, तो हम उसी शख्सियत से पहचाने जाएंगे जब हम यहाँ से कूच कर देंगे जो हमारी असली जगह वहां जाने के लिए, और खाक खाक में चले जाएगी। लेकिन जो शख्सियत है, जिस शख्सियत से हम इस दुनिया में हमने जिए, जिस शख्सियत से हमने इस दुनिया में काम किए, वो शख्सियत जिंदा रहेगी। अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो लोग अच्छे कामों से जानेंगे, अगर हमने अच्छे काम नहीं किए तो फिर लोग उसी तरह जानेंगे कि ये बंदा ठीक नहीं था, इसने हमारे लिए, लोगों के लिए या खुदा के नाम पर तनकीदें ही की और कोई काम इसको नहीं आता था। उसके बाद एक गजल है CYT पाकिस्तान के हवाले से, कोई आसार नहीं आते बचने बचाने वाले। बिल्कुल, अगर हम दुनियावी तौर पर या मैं अपने मुल्क के तरफ ले जाऊं ये शहर को, तो आसार तो नजर नहीं आ रहे बचने बचाने वाले, क्योंकि इतना कुछ तैयार हो चुका है कि अगर थोड़ा सा भी किसी तरफ से हल्ला गुल्ला हो गया तो खूब धमाल पड़ेगी। जैसे अक्सर कहते हैं कि दमादम कलंदर होगा, तो हमारे मुल्क में तो दमादम कलंदर होने के लिए हर वक्त लोग तैयार रहते हैं। उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, जेब में थोड़े से पैसे डाल दे, तो वो धमाल डालने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। बदी को छोड़ दे वक्त को, बदी को छोड़ दे वक्त गंवाने वाले। ये वक्त गंवाने वाली बात है, वक्त जाया करने वाली बात है, क्योंकि ये इतने सालों से हम 73 साल से अपना वक्त ही गंवाते आ रहे, और इसी वजह से हम इस दुनिया में सबसे, जो हमारा मुल्क है, सबसे पीछे जा रहा है। क्योंकि हम जो हमारे सियासतदान है, ये तो आते इसीलिए जी हम गरीबों के लिए ये करेंगे, हम मुल्क के लिए बचाएंगे, हम कशकोल नहीं उठाएंगे, हम ये नहीं, लेकिन करते वही सब कुछ है जो कुछ वो ज्यादा से ज्यादा अपने बैंक भर सकते हैं, अपनी जेबें भर सकते हैं, अपनी तिजोरियां भर सकते हैं, और वही कुछ होता रहा है और यही चलता रहेगा जब तक ये मुल्क बचा रहेगा। मुल्क तो बचा ही आ रहा है, कोशिश तो इन्होंने की है कि ना बचे, लेकिन खुदा इस मुल्क के साथ है। उसके बाद जब भी की तलकीन उनको तौबा की, जब भी की तलकीन उनको तौबा की, नाराज हो जाते हैं जमाने वाले। जब भी उनको को अच्छी तनकीद की है भाई कि ये बात ठीक नहीं है, तो आप सीधे हो जाए। वो तलकीन को, नसीहत को बुरा समझते हैं, वो हर चीज को तनकीद ही समझ लेते हैं कि ये तनकीद कर रहा है या मेरी बुराई कर रहा है। तो हम इंसानों की ये आदत जो है, हमारे इलाके की, एशिया की, खास तौर पर हमारे मुल्क की, तो माफ करना, मुल्क से प्यार तो मैं भी करता हूं, लेकिन जो मुल्क के अंदर लोग हैं जो किरदार कर रहे हैं, वो अच्छा किरदार नहीं, जिससे हम सबको, जो भी मुल्क पाकिस्तान में अवाम बसती है, जिनमें हम मसीही कौम भी हैं और हम गरीब लोग ही पिसते हैं, और ये हमारे लिए ठीक बात नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदेह चीज है। नाराज हो जाते हैं जब उनको अच्छी बातें बताएं कि ये नहीं भाई, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, तो फिर वो इन बातों को नाराज हो जाते, बुरा समझते कि हमें नसीहत क्यों की जा रही, हमें क्यों समझाया जा रहा है। और यही वजह कि हम किसी बात को, किसी की भी, चाहे कोई हमारा मजहबी रहनुमा है, चाहे कोई सियासी रहनुमा है, लेकिन हम उनकी अच्छी बातों को तनकीद ही समझते हैं। हम नहीं समझते कि ये
हमारे हक में, हमारे घरों के लिए, हमारे खानदानों के लिए और आने वाले वक्त के लिए, मुस्तकबिल के लिए अच्छी चीजें हैं, लेकिन हम उनको तनकीद समझकर, बुरा समझ के उनके खिलाफ हो जाते हैं। बदी में ऐसे हुए हैं गुम कि वो मिल ना सके। बिल्कुल ठीक बात है कि हम बदी में, हम शैतान के कामों में इतनी तरह महव हो चुके हैं, गुम हो चुके हैं, उसके पीछे चलते जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं किरदार जताने वाले, और कुछ ऐसे लोग हैं जो ये किरदार जताते हैं, और ये किरदार चलता ही जाए। तनकीदन जो किरदार है वो खत्म नहीं हो रहा, और हमने इस तनकीद से बचना है। हमने अच्छी तलकीन की तरफ जाना है, तनकीद की तरफ नहीं। और तनकीद जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि तनकीद कोई बुरी बात नहीं, हर मुल्क में होती है, यहाँ भी तनकीद होती है। भले इतना ताकतवर ये ट्रम्प है, लेकिन हर चीज को बर्दाश्त करता है। आप बरतानिया में देखो क्या हो रहा है, और दूसरे मुल्कों में देखो क्या। जमहूरियत जो है वो ठीक, लेकिन हमारी जमहूरियत जो है वो फर्क जमहूरियत है। हम हर चीज को, जमहूरियत खतरे में पड़ी जाती है, मुल्क भले खतरे में हो ना हो, हम जमहूरियत को संभालते रहते हैं कि जिस जमहूरियत को हम समझते ही नहीं कि जमहूरियत क्या है, मसावत क्या है, क्योंकि हम सारा कुछ अपनी जात के लिए करते हैं। तो यही कि बदी में हुए हैं गुम कि वो मिल ना सके। कुछ ऐसे लोग हैं किरदार जताने वाले, रोज आते हैं वो इब्लीस के संग नजर हमें, जो मैंने अभी पहले एक बात कही थी, रोज आते हैं वो इब्लीस के संग नजर हमने, खुद ही भटके हैं हमें राह दिखाने वाले। और ये 100% बिल्कुल सच्ची बात है। वो खुद ही, जो हमारे लीडरान है, जो हमें तलकीन करनी चाहिए, जो हमें आगे अच्छे तरीके से चलना चाहिए, वो ही हमें जो है खुद ही भटके हुए, वो खुद ही गलत राहों पर चल रहे हैं। रोज आते हैं इब्लीस के संग नजर हमने, वो ही लोग जो हमारे जो लीडर हम समझते हैं, या जो भी पासबान है, जो भी है, वो हमें शैतान के नरगमे नजर आते हैं और खुद भी भटके हुए हैं। जो हमें सीधा करने वाले हैं वो खुद भी भटके हुए हैं, हमें राह दिखाने वाले, जो हमें रास्ता दिखाने वाले, या जिनको हमें दिखाना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो, इसमें आपका भला है, लेकिन वो तो अपने लिए सब कुछ करते हैं। जो तो उनको ये है कि मैं अगर क्यों नीचे उतर चुका हूं, वो 5 साल इंतजार करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो यही कहते हैं कि तू हट जा, मुझे आने दे, मुझे भी बारी दे, ताकि मैं जितनी और भूख ला सकता हूं और लाऊंगा। और यही वजह कि हम दूसरों पर तनकीद करते हैं हुकूमत पर कि इसने महंगाई कर दी, लेकिन जब वो हुकूमत चली जाएगी तो फिर हम और तनकीद करेंगे कि इन्होंने ये महंगाई करके ये खजाना लूट के चले गए, तो हमें तो फिर IMF से कर्जा लेना ही है, तो फिर महंगाई तो होगी, गैस भी महंगी होगी, पेट्रोल भी महंगा होगा। चूंकि हम जो हमें काम करने हैं वो उसकी तरफ नहीं, क्यों महंगाई हो रही, क्यों गैस शॉर्टिंग हो रही है, बिजली की क्यों कमी है, क्योंकि सन 65 के बाद आबादी बेइंतहा बढ़ गई और बिजली या दूसरी चीजें जो पानी पर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन हम जो हैं खुद भटके हुए हैं और हमें कैसे वो सीधा कर सकते हैं। शाबाश कबूल की ही नहीं उसकी कुर्बानी तूने, ये एक्चुअली आखिरी शेर तो बिल्कुल वो मैं अगर कहूं कि हकीकत की तरफ उसने कर दिया है कि जिस यीशु मसीह की तनकीद को हमने तनकीद कर करके उसको झूठा साबित करके हमने सूली पर चढ़ा दिया था। वफा की झूठी शम्मे रोज जलाते हैं, रोज जो हम उस शबाश कबूल की नहीं, उसकी कुर्बानी, हमने उस कुर्बानी के जो हमारे लिए जो कुर्बानी उसने दी हमने तो वो कबूल ही नहीं की, लेकिन वफा की झूठी शम्मे
हम रोज उसकी मिसालें देते हैं, झूठी शम्में, झूठी रोशनी के रास्ते दिखाते हैं। तो बहुत खूबसूरत लिखा है शहबाज, खाली शहबाज, आगे क्या है शहबाज भट्टी है, शहबाज गिल है, कौन है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो जो अच्छी चीज मिलती है फेसबुक से मैं अपने शो में शामिल कर लेता हूँ। उसके बाद लफ्ज जिंदा रहते हैं। लोग बेटी से तो कहते हैं, ये हमारी जो घरेलू या माशरे या जो हमारी इज्जत की बातें हैं, हम वो सारा कुछ बेटी को ही कहते हैं। और यही पोस्ट है, लोग बेटी से तो कहते हैं कि घर की इज्जत खराब ना करना, ये आप समझते हैं, मगर बेटे से क्यों नहीं कहते कि किसी के घर की इज्जत खराब ना करना। और हम बेटियों को संभालते रहते हैं कि ये हमारी इज्जत ना खराब कर दे, ये हमारी पगड़ी ना गिरा दे, लेकिन बेटों को इतनी आजादी होती है कि वो लोगों की बेटियां उठाकर रेप करते हैं, बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं करते। और ये बिल्कुल बहुत अच्छी पोस्ट है कि हमें अपने बच्चों को भी संभालने के जैसे हमारी इज्जत है या हमारी माँ बहनों की इज्जत है, तो आप क्यों नहीं दूसरों की माँ बहनों की इज्जत करते, क्यों नहीं आप उनकी इज्जतों को भी संभाले जैसे आप अपनी बुरा समझते हैं कि हमारी माँ क्यों बाहर गई, हमारी बहन क्यों बाहर गई। हालांकि कोई बुरी बात नहीं, काम काज से तो हर किसी को बाहर जा, लेकिन हम अपने घर के लिए तो इतने गैरतमंद हैं, लेकिन दूसरों के घर को हम बेगैरती से देखते हैं और उनकी इज्जतों को हम अच्छी नजर से नहीं देखते। तो ये ठीक बात नहीं, क्योंकि जैसे मेरे और आपके घर की इज्जत है, दूसरों को घर की भी इज्जत इसी तरह ही होनी चाहिए। उसके बाद इन बिखरे मोती की एक पोस्ट है, इंसान भी क्या अजीब चीज है, क्या अजीब है, इंसान भी क्या अजीब है कि दुआ के लिए समझता है कि अल्लाह बहुत करीब है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि अल्लाह बहुत करीब है, और जब गुनाह के वक्त जब गुनाह करता है या जब गुनाह के वक्त समझता है कि अल्लाह बहुत दूर है। दूर क्या, वो समझता शायद अल्लाह है नहीं, मैं जो किरदार कर रहा हूं वो अच्छा ही कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह की पकड़ तो दूर नहीं। हम 7 कोठरियों में भी जाके गुनाह करेंगे तो उसकी अल्लाह ही जात जो है वो तो हमें देख रही है, वो तो हर वक्त हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहती है। लेकिन हम जब समझते हैं कि दुआ के वक्त हम समझते हैं कि वाकई खुदा मेरी दुआ सुन रहा है, मेरे नजदीक है, या गुनाह करके भी हम कहते हैं खुदा बाप जी मैंने गलत किया, तू मेरी मेरी इस गलती को माफ कर, मेरे इस गुनाह को माफ कर। लेकिन हम फिर गुनाह में गिर जाते हैं और फिर हम उस वक्त भूल जाते हैं कि खुदा मौजूद है, वो देख रहा है। बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके बाद भट्टी शायद, औलाद के लिए बाप, बिल्कुल ये 100% सच्ची और अच्छी बात है कि औलाद के लिए बाप वहां हाथ फैला लेता है जहां वो पांव रखना भी गवारा नहीं करती। औलाद की मोहब्बत इतनी, जो बाप के लिए हम सब जो भी बाप दादे बन चुके हैं, हम समझते हैं, हम जो अभी भी बन रहे वो ही जब भी उनके घर में बेटा या बेटी आ जाती तो फिर उसके अलावा उनकी सबसे ज्यादा जो कोशिश होती है। और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि अगर शादी है या कोई भी किसी मसले में भी बेटा फंस गया, आजकल तो हमारे मुल्क में तो ना भी हो तो झूठा कोई ना कोई इल्जाम लगा के लोग फंसा देते हैं, तो फिर बाप को वो अपनी औलाद के मोहब्बत में प्यार में उसके बचाने के लिए उस जगह भी जाके हाथ फैला देता है जहां वो कभी उनके सामने जाना भी पसंद नहीं, उनके पाँव में गिर जाता है। किस लिए? अपनी औलाद की मोहब्बत के लिए। तो औलाद एक ऐसी चीज है बाप के लिए कि उसको जहां भी औलाद के लिए हाथ जोड़ने पड़ते हैं, जहां नहीं भी जोड़ना चाहता तो फिर वो उसको बचाने के लिए उनके सामने वो हाथ जोड़ देता, हाथ फैला देता है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है, गुफ्तगू आराम से कीजिए। बिल्कुल ठीक बात, गुफ्तगू आराम से कीजिए। आपके बातें आपके वालिदैन की
तरबियत का अक्स होती हैं। बिल्कुल ठीक। हम जब बातें करते हैं तनकीद की इंतहा तक चले जाते हैं, गुस्से में जोश से करते हैं, और जोश से इसलिए करते हैं कि ये शायद मेरे गुस्से को या मेरे जोश को देखकर वो मेरी बात को मान लेगा। हमारा तरीकाकार ये है। हम टीवी पे भी ये करते हैं, जलसे जुलूसों में भी वो खूब जोर लगा के झूठ बोलते हैं, ताकि जितना जोर से झूठ बोले, जितने जोर से तनकीद करेंगे, हमारी बात को पावरफुल समझा जाएगा, मजबूती से समझा जाएगा। लेकिन जो तरबियत आपकी है वो नजर आती कि आपके माँ बाप ने आपकी कितनी अच्छी तरबियत की। किसी जबान से, दो चटाक की जबान से ही सब कुछ पता चल जाता है। जब इंसान बोलता है फिर पता चलता है ये क्या है, इसके दिल में क्या है, या इसके बड़े कैसे थे, या किस खानदान से तलक रखते। इसलिए इस जबान को बोलने के लिए सोच समझ की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये हमारे खानदान की भी पता चल देता है कि ये किस खानदान से, या इसकी तरबियत कैसी है। तीसरी पोस्ट है, उन लोगों को रिश्ते बचाने से कोई मतलब नहीं होता जिनको अपने मतलब से मतलब होता है। और ये ऐसी पोस्टें तो रोज आती है मतलब के हवाले से, जरूरत के हवाले से, कि जब हमें जरूरत भी होती है तो हम वही बात, गधे को भी बाप कहने वाली बात कर सॉरी, गधे वाली बात यह है कि हम गधे को भी बाप कहते, चूंकि मतलब होता है, और जब वो मतलब निकल जाता है तो फिर उसके बाद उनको कोई मतलब ही नहीं। मतलब तो सिर्फ इतना है, उन लोगों को रिश्ते बचाने के लिए उनको रिश्ते से, या बहन या भाई या किसी भी रिश्ते से कोई गर्ज नहीं। उनको अगर गर्ज है तो मतलब की गर्ज है, जरूरत की गर्ज है, कि मुझे जरूरत है, मैं कुछ भी कर लूं, मुझे अपनी जरूरत पूरा करने के लिए कुछ भी चाहिए, मिन्नतें समाज दें या जो कुछ भी करना चाहिए वो कर जाता है, क्योंकि उनको सिर्फ रिश्ते की नहीं, अपने मतलब की किसी भी किस्म को पैसे लेने हैं या कोई और मसला है, तो वो सिर्फ मतलब के लिए आपके पास आते हैं, और मतलब हल करने के बाद तू कौन और मैं कौन। उसके बाद नौजवान शायर सैमसन जीवन, ये यूएसए कैलिफोर्निया में है, उन्होंने बहुत अच्छी गजल लिखी है, तुम जो हर बात पे यूं दिल निकाल के रख देते हो। क्या बात, क्योंकि तुम तो हर बात पे यूं दिल निकाल के रख देते हो, कसम से हंडिया चूल्हे पे उबाल के रख देते हो। आपका दोस्त या जिससे आप प्यार करते हैं, आपकी दोस्ती है, तो फिर वो आपको ऐसी खूबसूरत तनकीद करता है कि जो लिखा है कि कसम से हंडिया चूल्हे पे उबाल के रख देते हो, कि जो दिल है या मेरा प्यार या जो मेरा दिल तुमने उस हंडिया की तरह उबाल के रख दिया, जिसे हम चूल्हे पे रखते हैं, उसके बगैर तो हंडी पकती नहीं। और यही है कि तुम जो हर बात पे यूं दिल निकाल के रख देते हो, कसम से हंडिया चूल्हे पे उबाल के रख देते हो हवा, अरमानों की आंच बेचैन पलों को देते हो, अरमान की आंच बेचैन पलों को गोद जलती पे तेल डाल के रख देते हो। वही बात के जलती पे तेल डालने वाली बात, कि हम एक बात पे तनकीद करते हैं तो फिर हमारी कोशिश होती कि जितनी भी इसको बढ़ाओ चलाओ, जितना भी, क्योंकि जलती पे तेल, जब जलती पे तेल डालेंगे तो फिर वो तो भंबड़ मचेंगे, वो तो शोले बढ़ेंगे। और यही बात है कि हम तनकीद पे तनकीद इतनी करते हैं कि हम तेल डालने वाली बात यह कि जो आग के शोले वो बढ़े, और ये जो जितनी भी बुराई हो सकती है जो हम मुआशी तौर पर एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, और वो बुराई ज्यादा से ज्यादा तेल डालने वाली बात ही है। जो पूछते हो तो कहते हो आखिर क्या ही
किया है हमने। बिल्कुल, हम कोई बुराई करके अगर हम कोई हमसे पूछता है तो हम कहते छड़ यार मैं केड़ा को बुरा काम कर छड़े, मतलब बुराई भी की है फिर भी हम कहते क्या हमने क्या बुराई कर दी है। यही है कि जो पूछते हो तो कहते हो आखिर क्या किया हमने, कुछ करके भी कमाल करके रख देते हो कि तुम इतना कुछ तनकीद पे तनकीद किए जा रहे हो, बुराई पे बुराई किए जा रहे हो या गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हो, और फिर भी अगर आपसे पूछा जाता है यार ये क्या किया तुमने, क्यों ऐसा किया, या माँ बाप या बहन भाई बड़े को या छोटों को कहते गए यार, वो कहते हैं हमने कौन सा गुनाह कर दिया, गुनाह भी किया, ज्यादती भी की, जुल्म भी किया, तो वो कहते हैं कि ये मुनाफिकत की एक इंतहा मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी किस्म है कि हम गुनाह भी करते हैं और हम इनकार भी कर देते हैं, बल्कि इनकार भी ऐसा कि हम ऐसा इनकार करते कि अगर हमें उसको गोली भी मारनी पड़े तो हम कम नहीं करते, क्योंकि कुछ करके भी हम कमाल कर देते हैं। हम गुनाह गलती करके तनकीदे पे तनकीदे करके भी हम कमाल करते हैं, चूंकि हम मानते नहीं हैं। तेरी अनकही ढूंढते हैं तखयल में अक्सर, तेरी अनकही ढूंढते हैं तखयल में अक्सर, हर जवाब को मेरे सवाल करके रख देते हो और मेरे हर जवाब को तुम सवाल बना के मेरे सामने ही पेश कर देते हो। तो ये हमारी नेचर है। तो यही कह रहे कि तेरी अनकही ढूंढते हैं तखयल में ख्यालों में, लेकिन तुम मेरे उस जवाब को सवाल बना के मेरे ही सामने सवाल बना के रख देते हो। और ये हमारी बहुत बड़ी एक जो सिफ्त कह लें, बहुत बड़ी सिफ्त है हम, और इसको हम सिर्फ समझते हैं अपनी कि हम जितना भी किसी बात को बड़ा जिड़ा कर या तनकीद कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इसको लाजवाब कर दिया जाए। झुके झुके सजदों में फक्त फिर से जन्नत को लोग, बिल्कुल हम सजदों में दुआओं में किस लिए झुकते हैं, फिर से जन्नत के लालच में कि हम, लेकिन जिसके सामने हम झुकते हैं कि हम जन्नत के लालच में जिसके सामने झुकते हैं वो तो दिल और गुर्दों को राजों को जानने वाला, वो तो समझता है कि सजदे सही तरीके से हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं या बुराई के हैं, लेकिन फिर भी हम उस जन्नत के लालच में झूठे सजदे किए जाते हैं और खलके खुदा को पाताल करके रख देते हैं। और हम जो खुदा है, जो खलक करने वाला है, हम उसको भी उस वक्त अपने सजदों में समझते हैं कि वो नहीं है, कहीं दूर है, पताल में चला गया, जहां हमें नहीं देखता, वो भले पताल में हो, जहां आसमान की बुलंदियों पर हो, जहां भी हो, यही तो खुदाई है उसकी। और यही खुदा है जिसको हम मानते हैं ना देखे खुदा को, और यही तो उसकी खुदाई है कि हम जहां मर्जी हो या हम ये समझे कि खुदा यहाँ पर नहीं, लेकिन वो खुदा हर जगह मौजूद होता है। और खल्के खुदा को भी पताल करके रख देते हो कि जो खुदा है, जो खल्क करने वाला, वो भी किसी जगह पर वो मौजूद नहीं, पताल में चला गया शायद। सिपाही उम्र भर खुद में तेरे गुनाह जीवन, मैंने तेरे प्यार की खातिर या तेरी मोहब्बत की खातिर या किसी भी खातिर मैंने तेरे गुनाह, तेरी गलतियां जो तू सारी उम्र करता रहा, तनकीद पे तनकीद करता रहा, मैंने सारी उम्र उनको तेरे खातिर छिपाया है। हम तुम हो कि इज्जत छाल के रख देते, बिल्कुल। और आप दुनियावी तौर पर देखें, आप इर्द-गिर्द देखें या जिनके साथ आपने दोस्ती की, बहन भाइयों रिश्तेदारों के साथ, कि जैसे कि तुम हो कि इज्जत अच्छाल के रख देते हो। जैसे अभी मैंने 2-3 पोस्ट ऐसे ही पढ़े मतलब के हवाले से भी, जब मतलब निकल जाता है तो फिर हमारी कोशिश होती है कि इस बंदे से जिसने भी मेरे साथ अच्छाई की है, इसकी ज्यादा से ज्यादा इस पर तनकीद करूं, ताकि जो मेरे साथ अच्छाई हुई है वो बुराई में बदल जाए। और यही हमारी जो एक जिबिल्लत है, वो बहुत बड़ी, बहुत बुरी जिबिल्लत है। बहुत खूबसूरत जीवन साहब आपने ये कलाम लिखा,
तुम जो हर बात पे यूं दिल निकाल के रख देते हो, कसम से हंडिया चूल्हे पे उबाल के रख देते हो। बहुत खूबसूरत बात। उसके बाद क्रिस्टोफर क्रिस्टी, ज़हनी सुकून हासिल करना है तो पीछे मुड़ के मत देखो। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम अगर कामयाबी चलनी है तो हमें जो मंजिल हमने तयन कर रखी है, कि जिस मंजिल का हमने दिल में ख्याल बनाया कि मैंने ये मंजिल हासिल करनी है, तो फिर हमें पीछे नहीं देखना चाहिए। हमें अगर मंजिल पूरी पहुंचना है, किसी पर तनकीद, किसी पर कुछ भी नहीं करना, और हमने अपने उस मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है। बार पीछे देखेंगे तो फिर हमारी वो मंजिल हम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि फिर रुकावटें ज्यादा आती हैं। लोग आते जाते रहते हैं। एक और पोस्ट है, बिखरे मोती। लोग आते जाते रहे, कोई मिल गया तो कोई लंबी भीड़ में खो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग जिंदगी में आते रहते हैं, कोई मिल जाता है, कोई उसको जब नहीं जरूरत तो फिर वो लंबी भीड़ में खो गया, लोगों में खो गया। तो किसी को छोड़ना पड़ा, जाहिर है हम अपनी मंजिल की तरफ गामजान है, हमें छोड़ना पड़ता है। और बस यही ध्यान रहे, ये बात आखिरी खूबसूरत है, बस यही ध्यान रहे कि अल्लाह ना खोए, खुदा पाक ना खोए, खालक और मालक ना खोए। क्योंकि अगर अल्लाह खो गया तो इंसान अपना सब कुछ खो बैठता है। और हमें इन बातों का कभी सोच नहीं आती कि जिसने हमें खलक किया, हमें इसमें दुनिया में इस जिंदगी की जमीन पर अशरफ और मखलूकात में शामिल किया, तो हम अगर उसको भी खो नहीं देते, हम खो रहे हैं अपनी हरकतों से, अपनी जो भी हमारे अखलाक से, अपनी इंसानियत से हम खो रहे हैं उनको बिल्कुल। अपनी जो हम आने वाला वक्त है, हम उसको खत्म कर रहे हैं। अगर हम यही देखें कि जो कुछ हम कर चुके हैं उसको भूले, माफी मांगे, और आगे जो हमारा मुस्तकबिल है, ये जो हाल चल रहा है, उसको हम बेहतर कर लें, तो वो ज्यादा अच्छी बात है। उसके गुम है जो तेरी आंख का मंजर तलाश कर, बहुत अच्छे दो शेर हैं। गुम है जो तेरी मंजिल का, तेरी आंख का मंजर तलाश कर, बाहर जो खो गया है वो अंदर तलाश कर। जो हमने, क्योंकि जो कुछ हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे दिल में, दिमाग में जो वो अंदर है, हम बाहर तलाश करते हैं कि मैंने बाहर क्या किया, लेकिन हम अंदर को नहीं देखते कि हमने, हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। ये बुराइयां हम बाहर निकालेंगे। जैसे बाहर जो खो गया वो अंदर तलाश कर, हम जो बाहर की चीजों को हम, लेकिन हमारे अंदर क्या है, हम दूसरों को नसीहत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कितनी हसद बुग़्ज़ भरा हुआ है, हम उसको नहीं देखते। कम गुम है जो तेरी आंख का मंजर, जो तेरी आंख का मंजर, जो कुछ भी गुम हो गया उसको तू बाहर ना तलाश कर, अपने अंदर तलाश कर। हमें अपने अंदर तो हमने, या जिस तरह पंजाबी च कहंदे कि असीं अपनी मंजी थले ते डांग नहीं फेरते, हम दूसरों के देखते हैं कि उसके घर में ये बुराई है, उसके पास ये साथ है, ये कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, हम इन चीजों को देख, लेकिन हम हमारे घर में या हमारे अंदर क्या है हम उसको नहीं देखते। उसके बाद जो तुझको तेरी जात से बाहर निकाल दे, जो तुझको तेरी जात से बाहर निकाल दे, दस्ते जुनू में ऐसा कलंदर तलाश कर। जो तेरी जात से, जो तू बुराइयां करता है, जो तेरे अंदर है, कोई ऐसा कलंदर तलाश कर। तो हमारे लिए सबसे बड़ा कलंदर क्या है? हमारा खुदा बाप और बेटा। हमने उसको तलाश करना है, तो फिर हमारी सब बुराइयां जो हैं वो खत्म हो सकती हैं, हो नहीं सकती, हो जाएंगी। लेकिन हम दुनियावी कलंदरों को पीछे जाते हैं, दुनियावी पीरों को पीछे जाते हैं, धागे तवीज़ों को पीछे जाते हैं। हम जो मसीह हैं वो भी सेम ही काम करते हैं। हम खुदा का बेटे का नाम लेते कि दिल, हमारे दिल के अंदर जो दूसरी चीजें हैं
اگر ہم ان کو باہر نکال دیں تو پھر خدا یا خدا کا بیٹا جس دن ہمارے اندر بس جائے گا سب برائیاں ہر قسم کی تنقید ختم ہو جائے گی اور ہم بائبل کی تلقین کو یا بائبل کی باتوں کو یا بائبل کی اچھی باتوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے اور زندگی بہت ساری آسان ہو جائے گی۔ اس کے بعد شہزاد گل ان کی پوسٹ ان کی ٹائم لائن سے لیا، لیکن جو کلام انور مسعود کو آپ کون نہیں جانتے، کیا بات ہے، مذاق کا بہت بڑا شاعر، اس نے لکھا مرد ہونی چاہیے خاتون ہونا چاہیے۔ جو مرد ہے، اور یہ صحیح آج کا ماحول ہے کہ ہر کوئی جو لڑکیاں یا خاتون وہ چاہتی ہیں اپنے آپ کو مرد نظر آئے، اور جو مرد ہیں وہ اپنے آپ کو عورت نظر آنا چاہتے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے اس نے لکھا ہے کہ مرد ہونی چاہیے خاتون ہونا چاہیے۔ رب اب گمراہ ساری گرامر اب گرامر کا یہی قانون ہونا چاہیے کہ اب جو وہ کیا کہتے ہیں عورت کو اور مرد کو دونوں کو اس کے اپوزٹ ہو جانا چاہیے، مرد کو ہونی چاہیے اور عورت کو ہونا چاہیے، اور یہی گرامر کا جو اصول ہے وہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دوستو انگلش بہت ضروری ہے ہمارے واسطے، سچی بات ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہم انگلش کے لیے اپنے بچوں کے لیے پاگل ہو جاتے کہ ان کو انگلش آنی چاہیے، اپنا کلچر نہیں، اپنے جو چیزیں پاکستانی ہے جو ہمارے وہ نہیں آنی چاہیے۔ فیل ہونے کے لیے بھی ایک مضمون ہونا چاہیے، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کیونکہ ہم پاس ہونے کا کام کم کرتے ہیں اور فیل ہونے کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں، اور یہی مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیل ہونے کے لیے بھی ایک مضمون ہونا چاہیے۔ نرسری کا داخلہ بھی سرسری مت جانیے کہ جب آپ نرسری میں داخل بچے کو کرتے تو یہ مت جانیے کہ اتنا آسان ہے۔ آپ کے بچوں کو افلاطون ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل کے تعلیمی اداروں میں اگر بچے کو نرسری میں KG نرسری تو پھر ان کو بھی بہت ذہین بہت ہوشیار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد صرف محنت کا ہی کیا انور کامیابی کے لیے، صرف محنت کیا ہے انور کامیابی کے لیے کوئی اوپر سے بھی ٹیلی فون آنا چاہیے، سفارش آنی چاہیے۔ اور روز دیکھ لو کل پرسوں بھی کراچی میں تو خاص طور پر جو جعلی سندیں ڈگریاں ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں بھی جعلی ایسے ہی بک جاتی ہیں، اور یہی ہے کہ اوپر سے فون آ جاتا ہے یار اس کو پاس کر دو، تو پھر وہ سفارش چل جاتی ہے۔ اس کے بعد آخری دعا ہے خداوند سے دعا، کلام خدا کی بہت خوبصورت دعا ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر دن خوشگوار گزرے، مسیح خداوند آپ کے کام کاج اور کھانے پینے پر برکت دے، ہر بیماری ہر پریشانی سے بچائے، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مسیح خداوند کے کلام کے مطابق گزرے، آپ کی زندگی مسیح خداوند کا روح مسیح خداوند کی روح کام کرے، آمین۔ خدا رحم کرے۔ اور میں یہی دعا پر اختتام جو کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مسیح خداوند کے کلام کے مطابق گزرے، آپ کی زندگی مسیح خداوند کا روح کام کرے، آمین۔ آپ کی زندگی میں، ہم سب کی زندگیوں میں مسیح کا روح کام کرے، اور جس دن ہماری دعائیں سننی شروع ہو جائیں اور ہم کہتے ہیں روح پاک آ جا، روح پاک آ جا، روح کی حضوری، اور جس دن اس کی حضوری ہمارے دلوں میں بس گئی ہماری ہر تنقید ختم ہو جائے گی، پھر تلقین شروع ہو جائے گی۔ ہم نصیحت کوئی ہمیں بھی کرے گا تو ہم اچھا سمجھیں گے، اور ہم کسی کو نصیحت کریں گے تو وہ بھی اچھا سمجھے گا، کیونکہ اس وقت روح کام کرے گا، اور روح ہی سب سے بڑی طاقت ہے جو ہمارے مسیحوں کے لیے، ہم جو مسیحی کے ماننے والے ہیں، جس نے ہماری خاطر اپنی جان قربان کر دی، تو یہی سب کچھ کامیابی زندگی کے لیے یہی ہے۔ خدا سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس جیسس لنک TV، آمین۔